السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رمضان میرو، حاضر ہوں کرنٹ افیئر کے ساتھ۔ سب سے پہلے تو حکومت نے جو انسانی جان بچانے والی ادویات مہنگی کی ہیں، انتہائی غلط قدم اٹھایا ہے۔ جب یہ حکومت آئی تو آتے ہی ساتھ 300% دوائیوں میں اضافہ کر دیا گیا۔ اس سے بھی پیٹ نہ بھرا تو پچھلے دن ہمارے سربراہ حکومت نے تقریباً 262% اضافہ ادویات میں دوبارہ کر دیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ اضافہ انسانی جانوں کے کھیلنے کے مترادف ہے۔ انسانی جان بچانے والی دوائیوں کو مہنگی کرنا انتہائی غلط قدم ہے۔ یہ اضافہ اور تمام چیزوں پر جو حکومت نے ٹیکس لگا کر بہت سی چیزیں مہنگی کر دی ہیں، ان کا تمام اضافہ حکومت کو واپس لینا چاہیے اور عوام کی صحیح جانوں میں خدمت کرنی چاہیے۔ کل ہمارے وزیر اعظم صاحب نے یوہن میں خطاب کیا، انگریزی میں خطاب تھا، جو کہ نہ میرے پلے پڑا اور نہ 99% پاکستانی عوام کے پلے پڑا۔ نہ سمجھ سکے ہم، بڑی معذرت سے ہم حکومت سے، وزیر اعظم صاحب سے کہتے ہیں کہ جو آپ نے انگریزی میں تقریر کی تھی اسے ہم نہیں سمجھ سکے، کیونکہ ہم انگریزی زبان نہیں جانتے۔ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ 1973 کے آئین کی پاسداری کرتے ہوئے سپریم کورٹ آف پاکستان کے 8 ستمبر 2015 کے فیصلے کی پاسداری کرتے ہوئے اردو میں تقریر کرتے، جسے پورے پاکستانی قوم سنتی اور سمجھتی۔ بڑے افسوس کے ساتھ ہمیں کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ نے پاکستانی قوم کی امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ اوپر سے ہمارے وزیر ریلوے آئے روز پریس کانفرنس کرتے ہیں، ریلوے کے خسارے کو دور کرنے کے بجائے ادھر ادھر کی اور وہ جو ہائی کورٹ کے سامنے اکثر مار روڈ پر بیٹھے ہوتے ہیں طوطا پال نکالنے والے، ان کی طرح نئی پیشین گوئیاں کرتے ہیں۔ اس وقت پاکستان ریلوے انتہائی خسارے میں جا رہا ہے، کیونکہ کرونا کی وجہ سے فروری میں تقریباً ریلوے کو بند کر دیا گیا تھا، مارچ میں کل، لیکن کرونا کے بعد ریلوے چلائی گئی تو تمام بہت سے اسٹاف جہاں ریلوے کھڑی ہوتی تھی، مثلاً کوٹ لکھپت لاہور کا اسٹیشن ریلوے کا جو ہے، اس پہ 3 لاکھ روپے روزانہ آمدن تھی۔ 920 940 تک مسافر روزانہ اترتے چڑھتے تھے۔ اس سٹاف کو ختم کر دیا گیا۔ مراد جمالی اسٹیشن بلوچستان کے اندر، اس کو بھی ختم کیا گیا، اور بہت سے اسٹیشن جہاں بہت زیادہ آمدن تھی، شہیوال، اکاڑا، ایسے بہت سے اسٹیشن جہاں لاکھوں کی روزانہ آمدن تھی، ان کو ختم کر دیا۔ اس کا مقصد یہ ہوا کہ پاکستان ریلوے کو خسارے کی طرف دھکیل دیا گیا،
इसी महीने की 4 तारीख से मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के पीछे मिलने करता दिख रहा हूँ कि जनाब कोटलखपत स्टेशन को ही आप बहाल कर दें और तमाम स्टेशनों को बहाल करें, ताकि ये रेलवे की जो जहाँ अरबों की आमदन है माहाना, ये रेलवे के खजाने में आए। अगर रेलवे तरक्की करेगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा, पाकिस्तान तरक्की करता है तो पाकिस्तान की आवाम तरक्की करती है। जो रेलवे का खसारा है, जो रेलवे के खसारे के सबब बन रहे हैं, वो पाकिस्तान के मोहब्बे वतन नहीं है। मेरी अरबाब इख्तियारात से, मेरी अपने मोहब्बे वतन सिक्योरिटी फोर्स से अपील है कि आप ही हमारे वज़ीर आज़म साहब को, वज़ीर रेलवे साहब को समझाएं और आवाम पर जुल्म करने से बंद रखें। इस वक्त तमाम इदारे कोई अवामी काम नहीं कर रहे। अगर किसी के पास कोई फाइल है, उस फाइल के अगर पीछे न चले तो फाइल वहीं दबी दबी रह जाती है। तमाम इदारे, तमाम का तमाम, यानी तमाम का तमाम कह रहा हूं मैं, कोई एक इदारा नहीं कह रहा, निकम्मे हो चुके हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। इंतहाई पिछले 25 साल से 20-25 साल से मैं समाजी वर्क कर रहा हूं। मैंने इंतहाई नालायक हुकूमत ऐसी नहीं देखी, ऐसी कमजोर हुकूमत मैंने पिछले दौर में कहीं नहीं देखी। हाँ, लैब से, बहुत से लैब से पिछली हुकूमतों में, लेकिन इतनी कमजोरी नहीं थी। सरकारी इदारे काम नहीं करते थे। यहाँ हम पुलिस का कबूल ले लें, पुलिस के पास अगर कोई कंप्लेनर चला जाए तो कंप्लेनर को हरासा किया जाता है, मुल्ज़मान का साथ दिया जाता है। मैंने यहाँ तक देखा है कि बहुत से पुलिस एहलकार सामने कत्ल हुए लोगों को 174 में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी लावार है। ऐसे मामला भी होते हैं। ऊपर से पुलिस किराएदारी एक्ट के जरिए जो 2015 में हुकूमत ने, सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक बैठक की और उसमें किराएदारों की रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू किया। 2015 में रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू हुआ, तमाम लोगों ने किराएदारों ने रजिस्ट्रेशन करवाई, लेकिन पंजाब पुलिस ने अपने अनोखे ही SOP बना लिए। सिंध पुलिस ने बनाए, दूसरे सूबों की पुलिस ने भी बनाए, अकेला पंजाब ही नहीं। हर साल, हर 6 माह बाद, हर महीने बाद उनको दोबारा से बताया जाए कि ये बंदे रह रहे हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन करवाए, किराएदारों को बुलाए। ये कहाँ का कानून है? ये कहाँ का? कोई पूछने वाला नहीं है, ना कोई पंजाब पुलिस को पूछने वाला है, ना कोई सिंध पुलिस को पूछने वाला है। तो ये कैसी हुकूमत चल रही है? हाँ, इस वक्त जो CCTV लाहौर आए हैं, जो हम देख रहे हैं, वो काम करना चाह रहे हैं। जो पुलिस एहलकार गलत काम करता पकड़ा जाए, उसे वो उसके खिलाफ FIR करते हैं और उसे हवालात में बंद कर देते हैं। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमें अप्रिशिएट करना चाहिए CCTV लाहौर को कि वो आवाम की मसाइल के लिए कुछ न कुछ तवज्जो दे रहे हैं। इस वक्त लाइव आदत की सूरत ये है, आए लोग गलियों मोहल्लों में चोरियां डकैतियां हो रही है, लेकिन कोई उन्हें पूछने वाला नहीं। पिछले दिनों में हमारे आजकल SSP एडमिन है गालिब मलिक लियाकत साहब, CTO लाहौर थे। उसके दौर में लाहौर के अंदर
फिरोजपुर रोड पर 50 की स्पीड गाड़ियों की रखी गई और किनार रोड पर ठोकरध्यान देख से जलो रोड तक 60 की स्पीड गाड़ियों की मोटर बाइक की रखी गई और लाइन एंड लेंथ के मुताबिक गाड़ियों को चलाया गया। जो लोग लाइन एंड लेंथ की खिलाफ वर्जी करते थे, बाइक को गलत तरीके से, गाड़ी को गलत तरीके से चलाते थे, उनके ऑटो कैमरे के जरिए चालान किए जाते थे। वो चालान अब बंद कर दिए गए हैं, जो कि इंतहाई गलत कदम है। ऐसे चालान लाजमी होने चाहिए, कैमरा के जरिए चालान हो, ताकि लोग अपने, अगर कैमरा के जरिए चालान होते थे तो लोग लाइन एंड लेंथ की परवाह करना शुरू कर दिया, स्पीड की तरीके से चल रहे थे, कोई एक्सीडेंट नहीं हो रहा था उन दिनों में। अब रोज आए रोज एक्सीडेंट होते हैं, क्योंकि अब कोई पूछने वाला नहीं है। वो कैमरा चेक नहीं करते थे, क्या वो कैमरा के जरिए चेक नहीं होते, कैमरे बंद हैं, चालान हो नहीं रहे कैमरों के जरिए। हाँ, ये टारगेट दे दिया जाता है तो भाई आप फला इंस्पेक्टर ने 1200 चालान देने हैं, फला ट्रैफिक वालों ने 1200 देने हैं, ITC ने 1200 देने हैं, यानी आवाम को दूसरे तरीकों से लूटने की तैयारी होती है। उनके सेहत के लिए, उनकी जानें बचाने के लिए उनको कैमराज के जरिए कंट्रोल नहीं किया जा रहा, जो इंतहाई गलत कदम है। मैं हुकूमत से अपील करता हूँ कि कैमरा सिस्टम के जरिए चालान किए जाएं और लाइन एंड लेंथ की कानून के जरिए जो खराब वर्जी करें उनको चालान करें, और स्पीड जो यहाँ फिरोजपुर रोड पर, किनार रोड, मुख्तलिफ रोड पर जो रखी गई हैं उनके मुताबिक गाड़ियों स्पीड से ओवर स्पीड न चलाई जाए, ताकि लोगों की जान माल बच सके।